Morning students. Yesterday we have discussed about the versatile nature of the carbon and its compound. कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि catenation and its unique nature and the tetravalency which are responsible for making a large number of the compounds in the atmosphere or in the earth surface etc. And these are known as generally organic compound. तो जितने भी organic compound है जैसे एक organic chemistry या organic compound. Before that, it was 1828 से पहले 1828 से पहले it was assumed that most of the compounds which are formed from the carbon are generally known as your organic compound, and these organic compounds are formed from the living beings. जितने भी organic compound है किससे बने होते हैं? Living beings से discover होते हैं. So it was assumed that all the compounds which are formed from the living beings are known as your organic compound, in which carbon is one of the main important components, right? But in 1828 this theory was disproved by किसने इसको गलत साबित किया? That is your Frederick Kohler. Frederick F-R-E-D-R-I-C-H. Frederick Kohler. He told that the organic compound can also be formed from the inorganic substance like ammonium cyanide. There was an inorganic compound that is known as your ammonium cyanide, which is not formed from the living beings. This living beings से नहीं बना. This is your inorganic compound. This inorganic compound can be used to form the organic compound. तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस क्या बनाने में यूज कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज कर सकते हैं, एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज यूरिया. तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला था NH4Cl और इससे क्या बनाया? यूरिया NH2CONH. This is known as your urea. This is the organic compound in which carbon and hydrogen are present, and this is your inorganic substance which is prepared in the laboratory, and this is your inorganic compound, and the name of the inorganic compound is your ammonium cyanide. Right? Okay. So now we will discuss about the saturated and unsaturated organic compounds या carbon compounds. As all of you know that there are large number of the compounds are present in our surrounding, and some of them are your saturated and some of them are your unsaturated compounds. Before that, what do you mean by saturated and unsaturated? We will discuss that. Okay, we will discuss about the saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated and unsaturated hydrocarbons. Right. So what do you mean by saturated and unsaturated? Saturated means which are having the carbon single bond is present. कि कार्बन किसी के साथ ज्वाइन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा, that compounds are known as your saturated hydrocarbons. अभी बताती हूँ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है और saturated carbon compound. Hydrocarbons mean the compounds formed of only कार्बन एंड जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बने होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे. These hydrocarbons may be your saturated or may be your unsaturated. So saturated hydrocarbons are those which are having the carbon single bond. यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाया, यानी दोनों एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे. But in the unsaturated hydrocarbon, either there is a carbon double bond or there will be carbon triple bond is there. So carbon double bond or triple bond, or that is known as the unsaturated hydrocarbon. इसका एक बेस्ट एग्जांपल unsaturated hydrocarbon का, that is your vegetable oil. जो आप घरों में ऑयल यूज करते हो
जो हमेशा लिक्विड रहता है इवन इन द विंटर सीजन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड एग्जांपल दे दो, उसका देंगे हम। समझ में आया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीनिंग? सैचुरेटेड मींस द कार्बन कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मींस either they are having the single bond or they are having the double bond, in which carbon having the single bond, that is known as ane। तो इनमें क्या लगता है? एन, या वी कैन से दैट एल्केन। if the carbon single bond is present, then they are known as your alkane, right? If carbon double bond is there, then they will be known as alkene, and if carbon triple bond is there, then they will be known as alkyne। यानी जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा इन, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहां क्या होगा? एन, राइट? So if there is a carbon single bond is there, carbon single bond is there, then it will be known as alkane. If there will be double bond is there, then it will be known as alkene. And if there will be carbon triple bond is there, then it will be known as your alkyne. Right? As I told you that these compounds are generally formed of your carbon and the hydrogen. So there will be some general formula for your saturated and unsaturated hydrocarbon. In saturated और unsaturated hydrocarbon का एक formula होता है, that is known as the general formula, and that general formula is CnH2n plus 2 for the alkane। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के। If you don't know what do you mean by saturated and unsaturated, how will you able to know the formula of a given your name or substance? मान लो सिंपली मैंने लिख दिया इथेन, आपको क्या पता इससे क्या फॉर्मूला है? मैंने लिखा ब्यूटेन। So how do you know that what is the formula of your butane? So before that, being the formulas of these substances, so we should know about the saturated and unsaturated hydrocarbon. So saturated hydrocarbon, carbon single bond is there, and they are having the general name, that is your alkane, having the general formula CnH2n plus 2, and is equal to 1, 2, 3, 4, 10। ये कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। उसमें कार्बन के कितने कंपाउंड होंगे, हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एल्कीन दैट आर हैविंग द फॉर्मूला CnH2। यानी जितने कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे उससे डबल किसके प्रेजेंट होंगे? उसके अंदर हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें डबल से दो ज्यादा किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? एल्केन के अंदर प्रेजेंट होंगे। और यदि मैं एल्काइन की बात करूं तो CnH2n minus 2, राइट? तो इसका मतलब है जितने कार्बन के प्रेजेंट होंगे इसके डबल से दो किसके प्रेजेंट होंगे? एल्काइन के प्रेजेंट होंगे, when which are having the carbon triple bond is there। So we can say that this is the general formula for your saturated, and these are the general formula for your unsaturated hydrocarbon which are having the double bond or the triple bond। I think it is clear for all। Is there any doubt related to that? Then write in the chat box, so I will able to see or watch it। Yes, कैटिनेशन फिर से बता दो, अभी बता देंगे, कोई नहीं मैं बता दूंगी, इसको बना के फिर बता। तो CnH2n minus 2, CnH2n and CnH2n plus 2। तो अब ये तो हो गया कि जनरल फॉर्मूला। अब आप देखते हो मीथेन वर्ड यूज करते हो, इथेन यूज करते हो, मैंने प्रोपेन लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया। तो हाउ दीज विल बी देयर? तो व्हाट इज द value of n in between them? So we will write a table in which you will able to learn how the name of these substances are given। After that we will discuss the electron dot structure of these compounds। This electron dot structure was given by the Lewis scientists, so they are known as Lewis dot structure। तो मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n is equal to 9, and n is equal to 10। Right? When n is equal to 1, then it will be termed as meth। Right? If it is n की value 2 है, then it will be 8, 3 है तो prop, 4 है तो bute, 5 है तो pent, 6 है तो hex, 7 है तो hept,
8 हो तो आपका ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। राइट, अब देखो ये तो क्या, जब m की वैल्यू आपकी जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें 1 है तो मिथ होगा, 2 है तो इथ होगा, 3 होगा तो फ्लोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, m इक्वल 6 हेक्स, हेक्स ऑफ नॉन डेक। 11 12 जितने भी है वो बाद कर सकते हो, लेकिन आप इसको इतना ही करोगे तो इट इज सफिशिएंट। अब मैंने कहा सैचुरेटेड हैविंग अ CnH2n plus 2, if I am going to draw the table like this, ये अगर CnH2n और CnH2n minus 2, राइट। अब इसमें n की वैल्यू रखो तो C1H4, राइट। 2 1 2, 2 plus 2 4। अब देखो मैंने कहा अब बार बार करने के 2 2 4 plus 2 6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C20H22. This is the formula of your saturated hydrocarbon, and the saturated hydrocarbon कार्बन कार्बन फॉर्म्स टेट्रा बॉन्ड। बेटा कार्बन कार्बन टेट्रा बॉन्ड तभी बनाएगा जब वो 4 अलग कार्बन आइटम्स के साथ ज्वाइन होगा। जैसे अब देखो मैंने कहा n सी की n की वैल्यू 1, तो विथ वर्ड हो गया, और एल्केन के लिए मैंने क्या यूज किया था, एन, ईन और आई, तो मीथेन, इथ, इथेन, प्रोप, एन, ब्यूट, एन, पेंट, एन, हेक्स, एन, हेप्ट, एन, ऑक्ट, एन, ऑक्टेन, नॉन, एन, नॉनेन, और ये डेकेन, right? So these are the name of the compounds which are having the saturated hydrocarbon: methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, and decane. So you can learn like this, and this is the general formula का CnH2n plus 2 दिया है, उससे आप n की वैल्यू रख के कर सकते हैं, and this is your known as the alkane, and these are your saturated hydrocarbon. अब आप कैसे कहोगे मैडम आपने तो इथेन लिख दिया सैचुरेटेड है, हमें कैसे पता चलेगा सैचुरेटेड है? तो we will discuss the electron dot structure in which we will tell you what will be the bond present between them, either the single bond or the double bond is present between them. अब देखो इसे कार्बन बंद बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि C1H2 CH2 नहीं बनता, so that will be starts from here and that will be C2H4 double simple, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20, राइट। सिंपली जितने कार्बन आइटम लिया उसका डबल कर दो, यानी कहां से शुरू, 2 का मतलब इथ, और लास्ट में क्या लग रहा है, ईन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटीन जैसे शैम्पू आता है ना पेंटीन का लाइक दैट, हेक्सीन, हेप्टीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, और ये क्या बनेगा आपका, नोनीन और डेक्टीन, राइट। इसी तरह से इसमें C1 2 में से तो कदर H0 दैट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ क्या बनेगा, जितना डबल है डबल में से 2 घटा C2H2, 2 2 4, 4 में से 2 माइनस क्या बन गया C2H2, यहाँ C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16 और C10H18, राइट। तो आप ऐसे बना सकते हो उसको, दिस टेबल इज नॉट इन योर बुक, तो इथ 2 कार्बन आइटम है, 2 का मतलब इथ, और लास्ट में क्या लग रहा है, so what will be I, and it is also known as your acetylene gas which is used in the welding,
ये वेल्डिंग में भी यूज करते हैं। जब आप बर्तनों की या किसी की भी वेल्डिंग करवाने जाते हो तो उसमें जो गैस यूज करते हैं उसको इथाइन बोलते हैं या एसिटाइलिन भी बोलते हैं। C3 फ्रॉम आयन, ब्यूट आयन, पेंट आयन, पेंटाइन, ये हो गया हेक्स आयन, हेप्ट आयन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, और ये क्या हो गया आपका नॉन आयन और डेक, right? So these are the journal which are having a saturated and unsaturated hydrocarbon. These saturated and unsaturated hydrocarbon are known as the alkane, alkene, and the alkyne, depending upon the type of the bond present between them. If the carbon-carbon single bond is there, then it will be known as the alkane. If carbon-carbon double bond is present, then it will be known as kene. And if carbon-carbon triple bond is present, then it will be known as ine. Right? So how you will draw the electron dot structure of the saturated or unsaturated hydrocarbon, we will discuss now. तो किसी का भी हम कर सकते हैं, जैसे मीथेन का मैंने आपको बताया जिसमें मीथेन चारों तरफ आपका सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट। वी विल डिस्कस नाउ इथेन का पता है। यहाँ पे एक सिंपल सा करेंगे, जैसे C2H6, C2H6 कितने कार्बन है? कार्बन 2। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन यूज है? 1 2 3। तो 1 2 3। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4। अब इसको 4 बनाने हैं तो इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस। एक हाइड्रोजन का इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, राइट? So what will be there? इसका complete, इसका complete, complete, complete of outer shell, इसका complete, right? अब इस कार्बन के पास 2 2 4 6 और 7, तो ये 8 भाग किसका लेगा? इसका, राइट? इसी तरह से ये वाला कार्बन एक किसका लेगा? इसका। तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड और 7, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया? सिंगल। तो जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो व्हाट विल बी द nature of these hydrocarbon? Either it is saturated or unsaturated hydrocarbon. Obviously the carbon carbon is having the single bond, so we will say that it is your saturated hydrocarbon, right? मैंने ये फर्स्ट डिलीट कर दिया। एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उसमें कार्बन के कितने एटम है? 1 है या 2 है। अब जब आपका मैं मान लो यहाँ पे लिखूं CH2 that does not exist in the atmosphere, और इसमें CH0 यानी हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन नहीं करा, तो इट विल नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैंने इन दोनों में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन नंबर 2, इसलिए वो कार्बन नंबर 2 से आपके क्या होता है? स्टार्ट होता है। अब जैसे मैंने इसका लिखा, अब मुझे कोई कह दे कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटेन, आपको ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4। एन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हैविंग द फॉर्मूला CnH2n plus 2, then 4 दूनी 8, 8 plus 2 10। So what will be the formula of the butane? That will be C4H10। जब C4H10 के बारे में करोगे तो how you will write the formula electron dot structure of this compound? अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? किसका? ब्यूटेन दिया मैंने। You can try on your notebook. I am going to write on the board just by clearing it. Right? अब मान लो मैं C4H10 यानी 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, और कितने हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? इसका एक्स इजी रह जाएगा। हर के कार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन,
हर कार्बन के कितने पास है? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। अब देखो इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट। जब पूरा बन जाएगा आप ये लगोगे कि क्या बना दिया। इससे ध्यान से देखना। पहले मैं हाइड्रोजन ये कंप्लीट कर दूं। राइट, अब इस कार्बन के 2 2 4 2 6 7 और 1 राइट, इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब इस कार्बन के पूरे के 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इस कार्बन के देखो किसके साथ शेयर करेगा? इसका। अब देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब ये वाला किसके साथ शेयर करेगा? 2 इधर 2 इधर, इसके साथ भी और राइट। अब ये वाला किसके साथ शेयर करेगा? That is the electron dot structure of your butane. If I am going to write, मैं bond बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी सारे के सारे किस बॉन्ड से प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। राइट, तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैंने मांगना है। So that will be the electron dot structure of your butane. अब मान लो मुझे इसी का बनाना, मैंने यहाँ लिखा था C2H4 यानी कार्बन में, अब आई डोंट नो वेदर द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड इज विल बी देयर। और सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? C लिखूंगी। राइट, तो दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तभी तो C2 बना उसमें। अब कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन है, तो दोनों के पास कितने कितने हाइड्रोजन आ गए शेयरिंग में? 2 हाइड्रोजन आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका, ये इसका। एक इसने इधर दे दिया, एक इधर दिया कार्बन का, इसका पूरा। अब मान लो मैं ये कहूँ कि एक बॉन्ड इसका है, इलेक्ट्रॉन एक इसका। अब देखो कार्बन यदि कंप्लीट भी करता है, यदि इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना तो 2 2 4 और 2 6 बनते हैं, 8 तो इसका तब भी पूरे नहीं हो रहे। तो व्हाट विल यू डू? इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी इधर होगा और इसका भी इधर होगा। अब देखो हो गए पूरे 2 4 6 और 8। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी के साथ शिफ्ट। तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट बिटवीन देम? C डबल बॉन्ड C H H H और H, right? That will be the structure of your ethene. ethene बोला था ना C2H4, right? अभी catenation of some other theme है। Is there any doubt related to this? Just write in that box. I will see. किसी को कोई भी डाउट ऐसे रिलेटेड? इथेन का रिपीट करना है या इथीन का रिपीट करना है? जस्ट टेल मी, इथेन और इथीन। यस मैम। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. इथेन और इथीन। मैम इथेन, मैम ये जो भी समझाया था आपने C2H4, ये तो इथीन है। That's why I'm asking इथेन और इथीन। So you were asking about इथीन। अब
आपने इथीन बोलना था, नॉट इथेन। यही कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने पूरा ही टाइम लगाया इसमें, so that you will be able to understand the electron dot structure, right? C2H को देखो, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, इधर भी दो है। अब देखो, एक कार्बन एटम मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ थर्ड और फोर्थ। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे रखे, थर्ड और फोर्थ। इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी डिनोटेड बाय। इसका ऑक्टेट आउटर शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी आउटर शेल। अब देखो, मान लो मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखती हूँ, मैं यहाँ ना रख के सिंपली यहाँ रख देती हूँ इसको, तो क्या होता? whether the its outer shell will be completed or not। कितने होते हैं इसके में? 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन बन गया आउटर शेल में। 7 इलेक्ट्रॉन से its octet will not be completed। what will happen? then it will share the 2 electrons with the other carbon atom। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बनाया, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन वो बनाता है आपका, ये इसके साथ मिलके आपका दूसरा बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और साथ में दो दो हाइड्रोजन के पास होगी, तो दैट विल बी ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड। अब इसके अंदर देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड द पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, और एक बॉन्ड कौन सा इसके अंदर, पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड and 1 pi bond is present between the structure of the ethene। okay, yes, someone has asked me about the catenation। catenation means, अब किसी ने मुझसे पूछा catenation क्या होता है? that is the property of the carbon to form the large number of the molecules by joining with the other carbon atoms। कि कार्बन कार्बन एटम की एक लॉन्ग चेन बन जाए, so that a large number of the compounds will be formed, and that property is known as your catenation। catenation is the property of carbon to form a large chain, large तो नहीं बोलेंगे, long chain by joining large number of कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स बहुत सारे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और वो क्या बना दे, आपकी एक प्रॉपर्टी बना दे, मतलब लॉन्ग चेन बना दे। उस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूंगी, कैटेनेशन बोलूंगी। अब देखो, इसमें कार्बन में 1 2 3 4 लगाए, मैंने यहाँ 2 लगाए हैं। मैंने एक जगह लिखा था C9H18 लिखा था। इसके अंदर आपके कितने कार्बन एटम ज्वाइन है, 9 कार्बन एटम ज्वाइन है। अब जैसे आप सबने पॉलीथीन वर्ड सुना है, जो आप घरों में पॉलीथीन यूज करते हो, सुना है सबने, इथीन। देखो, इथीन ETHENE यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसके साथ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगते हैं, n का मतलब आपका हजारों भी हो सकता है, लाखों भी हो सकता है, तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। तो n आपका 1 से शुरू होके वो हजारों तक, लाखों तक चला जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, कार्बन के पास है। क्यों? टेट्रावैलेंट इन नेचर, स्मॉल साइज है, तो ये किसी के साथ भी जल्दी से क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है और एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है मोस्टली, and that property is known as your catenation। So understand about this। So this is about your saturated and the unsaturated hydrocarbon। chain और branching का मैं आपको कल कराऊंगी, not tomorrow, maybe on Friday।